the University Delhi, along with him Pankaj and dear Joshi and the respected principal of this college, Professor Kaurji, Mrs. Tarunpreet ji from PLM Girls College, and Dr. S.K. Arkalia College, and the members of the lecture committee and most respected teaching faculty, and above all, the most precious gift of nature, dear students. The topic for today's workshop is creative thinking. Life, if you try to study life has a definite pattern. It's like an rising arc. From childhood onwards, there is a sustained growth. There is sustained progress in every sphere. For example, physical strength, mental growth, and spiritual growth. So at every stage, there is a certain level of creativity that enhances your growth. And what is creativity? Creativity means welfare of all. In our Rigveda, we say, Sarve Santu Sukhina, Sarve Santu Niramaya. This is welfare for all, welfare of all. And for that, everything depends upon a thought. And thought is generated by energy and intelligence. Plus, we manifest that thought with our imagination and intuition. And this combination of thought, imagination, and this balancing of our intellect and mind is the basic concept of creativity. So, Dr. Thakur was here a few months back. On that day, I invited him to deliver a lecture in his college, and he agreed at that time. And I am very thankful to him for this kind gesture on his part. And I am very thankful to Pankaj also. And Chetan Joshi played a very vital role in engaging this, in organizing this workshop. And I hope that all of us will be enlightened by the valuable thoughts of Dr. And I won't take more time because all of you want to listen to him. So, Dr. Thank you so much for coming over to this place. And I hope
our area is a very, it's not, you are teaching in a very renowned university, known for its academic excellence, and of course, political alacrity also. So there is a certain level of gap between students of your university and this institution. So I hope our students will be beneficial after your, to listen to you. And thank you so much for coming over here. Thank you. का अर्थ है नॉवेल्टी, कुछ नवीनता, और ऐसी नवीनता जिसका कोई ना कोई उपयोग हो, चाहे वो इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे देश के लिए हो। क्रिएटिव थिंकिंग एक धुरा है किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग का। कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग जो है वो क्रिएटिविटी के बिना नहीं हो सकती। कोई युग था जब नॉलेज का युग था। आज नॉलेज एक क्लिक ऑफ माउस पे अवेलेबल है। अगर आप इंटरनेट पे जाओ, एक माउस क्लिक करो, आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। लेकिन आज हर जगह, देश के विभिन्न हिस्सों में अगर आप देखोगे, किसी भी फील्ड में अगर आप देखोगे, तो हाईएस्ट पोजीशन पे सिर्फ क्रिएटिव पीपल बैठे हैं। आज अगर कदर है, अगर किसी की वैल्यू है, तो वो सिर्फ क्रिएटिविटी की वैल्यू है, क्योंकि क्रिएटिविटी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, कुछ अलग सोचने की कला है। क्रिएटिविटी, अगर कोई ये सोचता है, जैसे सर ने, जब मैं सर का बायोडाटा स्टडी कर रहा था, तो इनके एक लाइन लिखी हुई है कि मार्क्स should not be read as a positive thinker। ये भी क्या है? ये है क्रिएटिव थिंकिंग। कुछ अलग सोचना, कुछ अलग हटके सोचने की जो कला है, वो है क्रिएटिविटी। जब मार्क जुकरबर्ग इतनी छोटी सी उम्र में फेसबुक बना देता है और सबसे छोटा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, वे है क्रिएटिविटी। जब 1996 के वर्ल्ड कप में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में, एक टीम का कप्तान ये सोचता है कि हम ट्रेडिशनल वे से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जिन ओवर्स में सभी लोग डिफेंड करते हैं, उन ओवर्स में हम अटैक करेंगे, अर्जुन राणा तुंगा। तब सनत जयसूर्या का जन्म होता है। ये है क्रिएटिव थिंकिंग, जो उस टीम को उस समय का वर्ल्ड कप को दिलाती है, और यही सोच है जो बाद में T20 क्रिकेट को दुनिया में लेकर आती है। ये क्रिएटिविटी की अगर इतनी ज्यादा महत्वता है दुनिया में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, और खास करके वो हमारे एजुकेशन कॉलेज में ज्यादा पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या सभी लोग क्रिएटिव हैं या क्रिएटिव हो सकते हैं। सेकेंडली, क्या क्रिएटिविटी इनेट है या क्रिएटिविटी को फोस्टर किया जा सकता है। थर्डली, क्या क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का आपस में कोई मेल है। क्या वो बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है जो एवरेज इंटेलिजेंस का मालिक है, या जो लो इंटेलिजेंस का मालिक है। और उससे भी ज्यादा जो सवाल वो है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अहम है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हैं, जिनका काम है क्रिएटिविटी को नर्चर करना, और वही हैं जो सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी को डिमिनिश करने में, बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्योंकि ये मेरा निजी विचार है, पता नहीं कोई एग्री करेगा कि नहीं करेगा, कि जब हम छोटे होते हैं तो हम सभी क्रिएटिव होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी डिमिनिश होती जाती है। और स्कूल्स, कॉलेजेस इसमें बहुत अहम रोल अदा करते हैं। वो कहते हैं, एग्जामिनेशन डोमिनेशन होने के कारण वो कहते हैं कि आप इसके बाहर, इसके उल्ट नहीं सोच सकते, इसके उलट नहीं लिख सकते, और ये धीरे 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 एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी खत्म कर देते हैं।
मैं ये जानना चाहूँगा सर से, जब मुझे हमारे प्रेसिडेंट श्री विनोद भारद्वाज जी ने ये कहा कि हमारा क्रिएटिव थिंकिंग पे हम एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की खुशी हुई, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हमारे कॉलेज में एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे बच्चे कल को स्कूल्स में जाएंगे, एक टीचर की तरह एक्ट करेंगे, और उनको अगर ये पता होगा कि क्रिएटिविटी को कैसे फ्लरिश करना है, कैसे फोस्टर करना है, तो अपने बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे, और जो आगे आकर समाज की को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अब मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर मणिन्द्र नाथ ठाकुर जी से कि वो कृपा आएँ और आकर क्रिएटिव थिंकिंग के ऊपर हमें कुछ बताएं और समझाएं कि क्रिएटिव थिंकिंग कैसे डेवलप की जा सकती है। डॉक्टर ठाकुर प्लीज। गुरविंदर जी, डॉक्टर विकास, पंकज जी, चेतन जोशी जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया इस विषय में बात करने के लिए। आमतौर पे लोग ये सोचते हैं कि एक पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं और JNU से हैं, तो वो क्रिएटिविटी पे क्या बात करें और क्यों बात करें। मेरे कई दोस्तों ने मुझे पूछा जब मैंने ये फॉरवर्ड किया उनको कि मैं क्रिएटिविटी पे बात करना चाह रहा हूँ, तो लोगों ने पूछा कि क्यों बात करना चाहते हो, तुम तो पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हो। मैं पहले इसका कारण बता दूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इसका कारण ये है कि मुझे लगता है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस में, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी जो परेशानी है वो ये है कि हम क्रिएटिव थिंकिंग को आगे नहीं बढ़ा पाते, हम उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग के लिए प्रमोट नहीं करते। इंफॉर्मेशन हमारे पास है, बहुत इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन के लिए अब शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि दो लोग बहुत परेशानी में हैं, एक पेरेंट्स, दूसरे शिक्षक। पहले क्या था कि बच्चे ये समझते थे, हम लोग समझते थे कि हमारे पिताजी दुनिया के सबसे जानकार आदमी हैं, कोई सवाल पूछ दो बता देंगे। अब बच्चे समझते हैं कि हमारे पिताजी कुछ नहीं जानते हैं, बल्कि पीछे रह गए हैं। वैसे शिक्षकों की हालत है, जब JNU में हमारे क्लास में बच्चे आते हैं तो हमसे बेहतर शिक्षकों का YouTube वीडियोज़ वो सुन चुके होते हैं पहले से। मेरे अपने 50 वीडियोज़ हैं, उससे ज़्यादा होंगे YouTube पर, वो सारा सुन के आते हैं। उन्हें पता है कि मेरी विचारधारा कैसी है, मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या जानने वाला हूँ। अब वो उसे आगे जानना चाहते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम है। डिफ़िकल्ट टाइम इसलिए है कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पे हम लोग चल रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन कमी किस में आ रही है, डिक्लाइन किस में आ रहा है, वो है इनोवेटिव थिंकिंग, वो है नई चीज़, नई बात कर रहे हैं। अभी बराक ओबामा एक प्रोजेक्ट को इनाग्रेट कर रहे थे कुछ दिन पहले, जब वो प्रेसिडेंट थे। सम ट्रिलियंस मनी उसमें खर्च किया गया था। वो प्रोजेक्ट क्या था? वो प्रोजेक्ट था ब्रेन रिसर्च। जो सबसे नई चीज़ अभी दुनिया में आई है वो है ब्रेन रिसर्च। अब वो कह रहे थे कि .com बिजनेस में हम इंडिया से हार गए हैं, वो आगे बढ़ गया हमसे। ब्रेन रिसर्च में हमें नहीं हारना, और अब जो दुनिया का मनी एक्यूमुलेट होगा वो ब्रेन के नॉलेज से होगा। हम आपके ब्रेन को अच्छी तरह से जान लेंगे कि आप कैसे सोचते हैं, और आपके बिहेवियर को हम इतना प्रेडिक्ट करेंगे कि हम जैसा चाहेंगे वैसा रिजल्ट दे सकें। ये जो इनोवेशंस हैं, मुझे लगता है कि सबसे जो आने वाले टाइम में बड़ी चीज़ होने वाली है वो है कि कौन सोसाइटी कितना ज़्यादा इनोवेट कर पा रहा है, कौन सोसाइटी कितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन रख रहा है। ये मिनिमम कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशंस को कहते हैं। इंफॉर्मेशन रखना आवश्यक होगा, लेकिन केवल इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। उससे आगे बढ़ने के लिए आपको इनोवेशंस करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ, मैं IITs की भी बात कर रहा हूँ, मैं JNU की बात कर रहा हूँ। इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में अभी भी हम लोग इनोवेशंस पे जोर नहीं दे रहे।
कुछ दिन पहले स्टीफन हॉकिंग का नाम आपने सुना होगा, वो स्पेस पे चले गए। तो लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है, आप स्पेस में जाके क्यों परेशानी मोल ले रहे हो? उन्होंने कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगली सदी में इंसान रहेगा कैसे, क्योंकि दुनिया जो है वो रहने लायक रह नहीं जाएगा। कारण क्या है कि इतना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और बड़े पैमाने पे लोगों को मारने वाला यंत्र इतना सस्ता हो जाएगा कि लोग गुस्सा करते ही बहुत से लोगों को मार डालेगा। एक छोटा सा आदमी यदि गुस्से में आ जाए तो सस्ते में उसे कोई बायो बॉम्ब मिल जाएगा जिसको लाके किसी शहर में वो छोड़ देगा, तो वह 1000 लोग मर जाएंगे। ऐसी दुनिया में कैसे रहेंगे? लोगों ने पूछा इसका उपाय क्या है? उन्होंने कहा इसका उपाय सिर्फ यही है, एक बड़ा उपाय ये है कि इंसान को अपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन करना